Science and Technology as a graphic designer at SPS. I'm thrilled to be your host for today's enlightening webinar. Today's webinar is being held by Scholar with Society. Our speaker for today's webinar is Mr. Engineer Ahmed Shuja. Mr. Engineer Ahmed Shuja studies civil environmental engineering in Italy with STAR scholarship. He explored EU University in Poland and Spain through Erasmus Plus scholarship. We are honored to have him today with us. Before embarking on the journey of knowledge, a moment for housekeeping. Kindly ensure your cameras are off and microphones are muted to minimize disruptions. And in case of any question, feel free to raise your hand or type the question in the WhatsApp group. We will address them later. Now, without any further delay, let's start the webinar. Over to you, Mr. Engineer Ahmed Shuja. You may proceed, sir. Thank you very much, Scholar Biz Society. I hope you guys can hear me clearly. If any one of you can confirm. Yes, we can hear you. Okay, thank you very much, and really hats off to your efforts. How you have arranged a list of seminar from people around the globe. It's a great opportunity for students to gain something valuable out of it. And I am really honored to be here. And it's always really nice talking to students and doing these type of sessions. As I was in same position like these students 2 years before, I am graduate of batch 2022, and I believe that study abroad, study in Europe, and study in Italy has always been a hot topic in Pakistan. And when I graduated, and still now it's one of the most hot topic, and that's why I'm here today. Inshallah, I will try to address everything with very straightforwardly and very realistically. सो आई होप के स्टूडेंट्स जो है इससे बहुत कुछ लर्न भी करेंगे और उनके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और कुछ स्टूडेंट्स जो कि डिप्रेस हैं अपनी इस लाइफ से कि हम पता नहीं बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज कई दफ़ा ग्रेड पॉइंट एवरेज के इश्यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। सो आई बिलीव कि हम उनको हर तरह से एड्रेस करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि समझते हैं कि हमारा जहाँ बाहर जाना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए बड़े अच्छे सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो आई होप कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, और मैं जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इससे समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग पॉजिटिव आउटकम्स जो है वो लेकर जाएं। तो इट विल बी मोर लाइक काइंड ऑफ अ डिस्कशन इंस्टेड ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल सेमिनार। सो मतलब अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चंस की ज़रूरत है बीच में, तो वो मुझे बता सकता है, मुझे स्टॉप भी आप कर सकते हैं, और ऑब्वियसली एंड पे तो हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। तो मैंने कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हैं जो कि स्टडी इन इटली पे फोकस कर रहे हैं। स्टडी इन यूरोप पे हम स्पेशली फोकस करेंगे, स्टडी इन इटली पे, और वहाँ से फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप यूरोप की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू एक्सचेंज प्रोग्राम्स या थ्रू रिसर्च प्रोग्राम्स। सो आफ्टर अ मिनट आई विल प्रेजेंट यू द स्लाइड्स। Please, if any of you can confirm that slides are being displayed. Yes, it is now. Okay, so today's topic is about study in Italy or study in Italia, and these are some structures of Italy. Beside, you can see them. So आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो स्टडी इन इटालिया से डील करेगा कि आप किस तरह इटली में आ सकते हैं, किस तरह इटली में स्टडीज़ कर सकते हैं, जो कि आपको चैलेंजेस हैं यहाँ पे इटली में वो क्या होंगे, जो इसके गुड पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, किस तरह आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज एड्रेस करेंगे। तो यही हमारा मेन टॉपिक है। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पहले ही बहुत इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया मेरा, थैंक यू। और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में करवाना चाहूँगा। माय नेम इज़ अहमद शुजा, and basically I'm a civil engineer. I have done my bachelor's in civil engineering from Fast Nation University. Right now I am pursuing my master's in civil and environmental engineering from University of Brescia, Italy. And I am an Erasmus scholar. I have done my Erasmus exchange at SGGAW, known as Warsaw University of Life Sciences in the city of Warsaw, Poland. Now I have been selected as
in the Unibus Research Funding abroad, which is in University of Córdoba, Spain, in the city of Córdoba. I am a Star Scholarship holder. I have won Italian Government Star Scholarship in 2022, and for pursuing my Masters in Civil and Environmental Engineering. So this is my brief introduction. So moving toward our main part. सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कि 80% 90% लोगों के जहन में है कि हमें अपनी डिग्री के बाद क्या करना है। और अगर आप आज फाइनल ईयर स्टूडेंट से या फिर जो अपने सेकंड लास्ट ईयर में है उनसे पूछें तो वो 80-90% आई एम श्योर कि वो रेशियो है जो कहती है कि हमें इस मुल्क से बाहर जाना है। अब इस मुल्क से बाहर आप किस तरह से जा सकते हैं? या तो आप स्टडीज़ की बेसिस पे जा सकते हैं, या आप जॉब्स पे जा सकते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से किसी फंडिंग्स वगैरह पे जा सकते हैं। लेकिन आज भी जो सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशियो है वो स्टडी वीज़ा की है। अगर इन केस आपका प्लान है बाहर परस्यू करने का हायर स्टडीज़ को, तो ख़ासतौर पे यूरोप के केस में सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशियो अभी भी स्टडी के केस में है, बिकॉज जॉब के सिलसिले में और इनके वीज़ा रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है। आल्दो अब स्टडीज़ के केस में भी वीज़ा रिजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है डे बाय डे, बट अगर एक स्टूडेंट अपनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करता है, एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करता है, टाइमली स्टार्ट करता है, तो वो सारे इश्यूज जो हैं वो अपने बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में यही आता है कि हम इटली को क्यों चूज़ करें। इटली को आप इसलिए चूज़ करें कि सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ उन सब लोगों के लिए है जो आज भी डिप्रेस हैं इस चीज़ से कि यार शायद मेरा ग्रेड पॉइंट एवरेज उतना नहीं है, मेरा जीपीए जो है, या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी साउंड नहीं है कि मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। उन सब चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो इटली आपको देता है। बाकी स्कॉलरशिप नो डाउट बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं, हर चीज़ है, लेकिन उसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। लेकिन इटली के केस में आपकी सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छी है, और उसके अलावा जो आपकी वीज़ा रिजेक्शन रेशियो है वो थोड़ी कम है। लेकिन हम अगर वीज़ा रिजेक्शन रेशियो को इम्प्रूव कर दें अपने डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए, तो हम बड़ी इजीली एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं और स्कॉलरशिप्स भी सिक्योर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा स्लाइड में किस तरीके से आप सिक्योर कर सकते हैं, और बड़े अच्छे स्कॉलरशिप्स जो कि मतलब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो इटालियन गवर्नमेंट आपको दे रही है। इटली में आने की सबसे बड़ी वजह जो हमारा मेन फोकस है, हर स्टूडेंट का फोकस होता है, वो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। हमें इटली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स जो है वो देती हैं, जिसके अंदर हमें बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, हमें बहुत सारे नॉलेजेबल, और जो भी एक सब्जेक्ट को होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट आवर्स का होता है, जो मैंने आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखा। तो जब आपके 8 to 9 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज उस सब्जेक्ट का प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसकी वजह से इसमें कोई डाउट नहीं है कि इटली जो है बहुत अच्छे हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इटली की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें रिसर्च फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली रिसर्च फैसिलिटीज़ की बेस पे इटली सेल्फ बहुत फेमस है, और ख़ासतौर पे जो सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है इसमें बहुत अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इनका कन्वेंशनल आर्किटेक्चर है, कन्वेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसमें ख़ासतौर पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इटली को परस्यू करें। थर्ड पॉइंट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो ट्यूशन फीस। अब हमें हर स्टूडेंट जो पाकिस्तान में है वो इस चीज़ को देखता है कि हम क्या अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप बाहरी यूनिवर्सिटी को देखें तो करेंसी रेट का इतना डिफरेंस है कि आपका जो वहाँ की फ़ी है और यहाँ के जो यहाँ के पीकेआर में प्राइस बनती है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर आप यूएस की बात करें, या आप यूके की बात करें, तो उनकी जो ट्यूशन फीस है वो इतनी ज़्यादा, और फिर स्कॉलरशिप वो कितना देते हैं 25%। अब उसमें से आप 25%, अगर आपकी 1 करोड़ रुपया फीस है, 25% कम भी कर देंगे, स्टिल आपको 75 लाख तो पे करना पड़ रहा है। लेकिन इटली जो है वो लो ट्यूशन फी है, इसमें अराउंड 1000 यूरोस जो कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपीज़ हैं, वो आपकी ट्यूशन फी है पर ईयर। बट अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आपका इनकम लेवल जो है वो इज़ सर्टिफिकेट है, जिसके बारे में हम आगे जिक्र भी करेंगे, तो आप बहुत आसानी से उसे भी वेव करवा सकते हैं। तो एक तो लो ट्यूशन फीस है, और उसके बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप उसको भी आराम से वेव करवा सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स तो ऑब्वियसली इटालियन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं, 3 to 4 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हैं, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन इसमें ये है
कि आपकी एक स्कॉलरशिप है जिसे हम रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप नो डाउट, स्टार स्कॉलरशिप एक मेरिट स्कॉलरशिप है। वो अगर आपको देखेंगे तो उसकी टोटल सीट्स आपको 4 to 5 मिलेंगी। 4 to 5 सीट्स पे सिक्योर करना डेफिनेटली डिफिकल्ट है, उसके लिए हाई जीपीए वगैरह चाहिए। लेकिन और स्कॉलरशिप्स ऐसे ज़रूर हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जीपीए इतना अच्छा नहीं है, या वो मतलब इतना अच्छा अफोर्डेबिलिटी नहीं है। उन सब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप इटालियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो स्कॉलरशिप का एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि इटली को इटालियन गवर्नमेंट ने, जर्मनी जैसे है, जर्मनी में आप जरूर जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्कॉलरशिप्स भी नहीं देते, वो बड़े कम स्कॉलरशिप्स हैं जर्मन में। तो इटली का एक एक्स्ट्रा एक गुड पॉइंट ये है कि वो आपको एक अच्छे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। और लास्ट में प्लेस ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली जब भी एक स्टूडेंट या कोई शख्स भी बाहर जाने का सोचता है तो उसको एक अच्छी प्लेस चाहिए, एक अच्छा एक ब्यूटीफुल सिनेरियो चाहिए। डेफिनेटली हम अफ्रीका को क्यों नहीं प्रेफर करते कभी भी स्टडीज़ में, इसीलिए नहीं करते कि वहाँ पे सिविलाइजेशंस के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के इश्यूज़ हैं, वहाँ कोई एक अच्छी प्लेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यूरोप इटसेल्फ एक बहुत अच्छी प्लेस ऑफ अट्रैक्शन है, और ख़ासतौर पे इटली जो है वो एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और जब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो हर हर शख्स को डेफिनेटली इटली को अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। और प्लेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत लोग अप्लाई करते हैं। इस दफ़ा अराउंड मोर देन 10,000 लोग थे जिन्होंने एक सिंगल यूनिवर्सिटी जो कि मेरी यूनिवर्सिटी है उसके लिए अप्लाई किया। तो उसकी रीज़न जो है, ये सब रीज़न्स उसी वजह से हैं, इतना ज़्यादा जो अप्लाई रेट आ रहा है वो इसकी उसकी रीज़न ये है कि इटली जो है आपको इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है और आपसे जो डिमांड कर रहा है बहुत ही कम है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इटली में अप्लाई तो करना है, लेकिन हमने अप्लाई कैसे करना है? जब हम अप्लाई के बारे में सोचते हैं, हमने अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे भी ज़हन में आती है कि क्या मेरा जो कोर्स है, जिसमें मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, क्या वो कोर्स मुझे आगे मिल रहा है? तो उसके लिए एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटली.com। ये जो मैंने नाम इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। यूनिवर्सिटीइटली.com पे आपके पास सिंपल एक पोर्टल है, जिसके ऊपर एक सर्च बार है। आप उस पे जाएँ, उस पे सर्च बार पे अपना सिंपल एक कोर्स ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उस पे सिविल इंजीनियरिंग लिखूँगा। तो वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि सिविल इंजीनियरिंग करवा रही हैं, वो सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएँगी। तो 1 मिनट के अंदर आप 4 टू 5 यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर लें, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप टारगेट करते हैं कि जहाँ-जहाँ मैंने अप्लाई करना है, अपनी मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए। जब आप इन सब पे इनको टारगेट कर लेंगे, तो उसमें फ़िल्टर्स अप्लाई हो सकते हैं इस वेबसाइट पे, जैसे कि लोरिया मैजिस्ट्राले। लोरिया मैजिस्ट्राले मीन्स मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसके अलावा अगर किसी ने बैचलर्स करना है तो वो अपना बैचलर्स में बैचलर्स का फ़िल्टर लगा सकता है, किसी ने डॉक्टरेट करना है तो उसका डॉक्टरेट का फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो सारे फ़िल्टर वहाँ पे प्रोवाइड हैं। और उसके बाद कैरिकुलम के फ़िल्टर, आप इटालियन में पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश कैरिकुलम कुछ कम है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी है कि हर बंदा उस पे अप्लाई कर सकता है। तो आप किसी भी कोर्स के हैं, किसी भी चीज़ में आप परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन इटली में, तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, वहाँ जाके आप सर्च करेंगे, सर्च करके सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने डिस्प्ले होंगी और उनमें से आप एटलीस्ट 5 टारगेट कर लें, 5 काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो उनमें से आप देख लें कि अगर आपने एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, मतलब अक्सर लोग हैं जिनका अप्लाई, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अप्लाई फ़ी है, तो अगर आप उनमें नहीं देनी चाहते तो आप लो लो एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ या फिर नो एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी हैं, जिनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया भी एक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 टू 5 यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें। फिर आप क्या करें कि उनकी वेबसाइट्स अपने पास रखें, अपने पास लिखें कि ये वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो है, या फिर कैलेब्रिया है, या इसके अलावा स्पेंजिया है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने अपने लिए देखी, अपने कोर्स में देखी, आप उसको सिंपल उनको अपने पास लिखें, 5 यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें। फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है। यूनिवर्सिटीज़ की जब आप वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ सारा प्रोसीजर, सारा करिकुलम आपके सामने आएगा। उन 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए डेफ़िनेटली आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंटेशंस कौन से चाहिए होंगे, उस पे भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। लेकिन आपने सिंपल ये करना है कि पहले यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाना है और उस पे अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर देंगे, फिर आपको क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपकी वैल्यूएशन करेगी। 2 वैल्यूएशंस इसमें होंगी, एक फर्स्ट वैल्यूएशन और एक सेकंड वैल्यूएशन।
जब आप फर्स्ट वैल्यूएशन पास कर देंगे तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी आप फर्स्ट वैल्यूएशन पास कर गए हैं, तो अब आपको प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यूज़ के लिए। आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, इंटरव्यूज़ में जो इंटरव्यूज़ का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप सिर्फ इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें कि किस तरह से आपका जो बैचलर्स है आपके मास्टर से मिलता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जो आपसे पूछना चाह रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंटरव्यूज़ में बैठते हैं, इंटरव्यू में बैठ के वो उनको सिर्फ ये बताते रहते हैं कि हमने जो है वहाँ इंटर्नशिप की, हमने वहाँ पे ये काम सीखा, हमने वो प्रोजेक्ट किया, हमने वो प्रोजेक्ट किया। आपने ये नहीं बताना, आपने मैक्सिमम फोकस अपना इस चीज़ पे रखना है, अनलेस वो आपसे पूछते नहीं हैं। मैक्सिमम फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आपके जो कोर्सेज पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मैं मास्टर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं मास्टर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो स्ट्रक्चर के कोर्सेज उन लोगों को बताने हैं कि स्ट्रक्चर के मैंने ये कोर्सेज पढ़े हैं और ये इस तरह से लिंक्ड हैं आपके मास्टर्स जो आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। तो जब वो बहुत सारी रिजेक्शंस इस दफ़ा भी इस वजह से आई है कि उन्होंने जो आपके बैचलर्स का कोर्स है उनके उनके जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं उनको जो आपके मास्टर्स के कोर्स हैं उनसे मैच नहीं करार दिया। अब मेरा कोर्स जो है वो सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो इन्वायरमेंट के बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने निकाल दिया इसी बेस पे कि वो अपने आप को टोटली परस्यू नहीं कर सके इस चीज़ में कि आपका सिविल का जो पार्ट है वो कैसे पूरा हो रहा है। सिविल में तो सिविल इंजीनियरिंग में तो इन्वायरमेंट के बहुत कोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट में सिविल के बड़े कम कोर्सेज हैं, और अगर हैं भी तो उनको बताना ही नहीं आया स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में कि हमारे किस तरह से ये मैच कर रहे हैं आपस में। तो ये एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप अप्लाई कर देंगे, फिर आपने प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए करना है। इंटरव्यू जब आप प्रिपेयर कर लेंगे फिर आपके स्कॉलरशिप्स होंगे। अब एक यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेगी, उसके अंदर मेरिट स्कॉलरशिप है, उसके अंदर रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अंदर और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की फंडिंग है या कोई इस तरह के, तो वो आपको सारी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप उनके ऊपर मिलेगी। जब आपने ये स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके स्कॉलरशिप्स का आउटकम आएगा। इन द मीनवाइल आप क्या करेंगे, अपने जो है वीज़ा प्रोसेस वो स्टार्ट कर देंगे। वो यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन ग्रांट का बता देना है आफ्टर योर इंटरव्यू। स्कॉलरशिप एक नेक्स्ट प्रोसेस है। तो उसके अलावा आपने साथ एक काम ये करना है कि एक ईजे सर्टिफिकेट है। ईजे मीन्स इनकम सर्टिफिकेट ऑफ इटली, मतलब आपकी इटालियन लॉ के हिसाब से आपकी इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम कितनी है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि आपकी फैमिली की इनकम, कि आप अपनी फैमिली की इनकम शो करवाएं, या फिर दूसरा ये है आप अपनी पर्सनल इनकम शो करवाएं। तो स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं इसमें कि जब वो अपनी फैमिली की इनकम शो करवाते हैं तो वहाँ पे वो ईजे में बहुत कम शो करवाते हैं, और जब अम्बेसी अम्बेसी आपसे डिमांड कर रही है कि आपको रिच होना चाहिए, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों, और यूनिवर्सिटीज़ से स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास पैसे बहुत कम हो, तो वो क्या करते हैं अपने जो ईजे का सर्टिफिकेट है उसमें बहुत लो इनकम शो करवा के वो एम्बेसी को भेज देते हैं। एम्बेसी देखती है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों डॉक्यूमेंट्स में और वो वीजे को रिजेक्ट कर देती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने रीजनल के लिए अप्लाई करना है तो वो आपका लिंक्स यूनिवर्सिटी से है, उसमें आप बेशक अपनी इनकम शो कर दें या जिस तरह, और ये इनकम 13,000 यूरो से कम होनी चाहिए एनुअली। अगर आपकी 13,000 यूरो से कम इनकम है एनुअली तो आपको फाशा ऊनो लग जाता है। फाशा ऊनो मीन्स द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में इनकम आती है, लोएस्ट इनकम आती है, वो एक स्टूडेंट को मिल जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट उसी में ही हैं इटली में। इटालियन अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उसमें हैं। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपको फिर चीज़ें वो फाशा उनो के हिसाब से मिलती है। फिर आपको उसमें मील की जो प्राइस है, आपकी अकोमोडेशन की प्राइस है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए कि आप अपना ईजे बनवाएं टाइमली। जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स थे, और मेरा अपना भी इशू आया था कि मेरा ईजे का सर्टिफिकेट जो था वो मैं टाइमली बनवा नहीं सका। तो उसकी एक फिर एडिशनल फ़ी होती है जो आपको पे करनी होती है 250 यूरोज़। तो वो आप करवा के और फिर उनको करते हैं, जमा सबमिट करवाते हैं। लेकिन आपने ईजे कैसे बनवाना है, यूनिवर्सिटी एक लिस्ट देती है आपको काफ एजेंट्स की जो कि ईजे बनवाते हैं। तो जैसे ही आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करना है वो काफ एजेंट्स की लिस्ट आपने देखनी है, उसमें से प्रेफर आप इस चीज़ को करें कि पाकिस्तानी काफ एजेंट्स को आप उनसे कॉन्टैक्ट करें ताकि आपकी लैंग्वेज बैरियर ना आए बीच में। आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें। डॉक्यूमेंट्स में सिंपल एक आपको एफिडेविट बनाना है कि मेरी फैमिली इनकम इतनी है।
जब आप उनको देंगे तो आपका ईज़र सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल है रीजनल स्कॉलरशिप के लिए। रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो 7,000 एनुअली आपको पे करता है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन और मील। अब इसमें जीपीए का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी लो इनकम है, आपका जीपीए कम है, डजेंट मैटर, आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी ने दे दी है तो आप हर तरह, और इसका एक्सेप्टेंस रेट 80 to 90% है। तो दिस मीन्स कि हर एक स्टूडेंट जिसका जीपीए कम है, जिसके पास फाइनेंस नहीं है, वो इटली में इजीली स्कॉलरशिप ले सकता है, सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करके। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है इटली का, ये कहीं पे आपको नहीं मिलता, किसी और कंट्री में नहीं मिल रहा, किसी और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल रहा दुनिया की। और अभी इसके और भी बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सबसे पहले उसमें आपके मार्कशीट आती है। मार्कशीट आपकी मैट्रिक और इंटर की। ये जो पॉइंट है ना इसमें कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, वो किन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करना है। सबसे पहले तो आपने अपनी मार्कशीट है, वो उसको आईबीसीसी टेस्टेशन उसकी चाहिए होती है, वो डेफिनेटली आप सबको पता होगा। आईबीसीसी टेस्टेशन जब आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स करवा के रखने हैं, यूनिवर्सिटी उसे बेशक ना ले, कई केसेस में यूनिवर्सिटी नहीं लेती उसे, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एम्बेसी ज़रूर लेगी। एम्बेसी के लिए आपने आईबीसीसी टेस्टेशन करवानी है। वैसे ही आप जब डिग्री से निकले अपने काम करवा लें, ताकि आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकें। कहीं पर भी अप्लाई करना है दुनिया में आपने, तो आपको ये चीज़ें चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो अपने फाइनल ईयर में है, तो उसको चाहिए अपने सेमेस्टर 7 में अप्लाई करें, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस और ये चीज़ें, इस चीज़ को टाइम लगता है। तो मैंने खुद भी ऐसे किया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था सेमेस्टर 7 में, और यूनिवर्सिटी से आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लें और उस पर आप अप्लाई कर लें। फिर सबसे पहला काम आपने ये करना है, अगर आप सेमेस्टर 7 में अप्लाई करते हैं, तो जब आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपकी एक रेस लगी होती है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करवाना है एम्बेसी में जमा, और आपके पास डिग्री नहीं है। फिर जैसे ही आपकी डिग्री है, आपने पहला काम ये करना है कि आपने उसे एचईसी से टेस्ट करवाना है। एचईसी से टेस्ट करवाने के लिए इंजीनियर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है, उनका पीईसी का नंबर ज़रूरी है। तो आपने इस चीज़ में इतना एक्टिव रहना है कि जैसे ही आप निकलें, आप अपनी डिग्री, अर्जेंट डिग्री अप्लाई करें, अपनी पीईसी नंबर को अर्जेंटली अप्लाई करें, और एचईसी को भेजें टेस्टेशन के लिए। तो एचईसी उस पर कुछ टाइम लेगी और उसको वो टेस्ट कर देगी। उसके बाद आपके जो एचईसी टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर आपने उनको लेकर जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जिसे हम मोफा कहते हैं। इनका एक लाहौर में भी ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है। तो आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ से जाके अपने मेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको टेस्ट करवाएँ। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे ही कर लेने चाहिए, पहले ही पूरे कर लेने चाहिए, अगर आपका बिल्कुल ये प्लान है कि आपने इस कंट्री से बाहर जाना है, अपनी परस्यू करने है हायर एजुकेशन, कहीं पे भी अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अप्लाई करने लगते हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो पासपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे पासपोर्ट्स डिले हो रहे हैं पाकिस्तान में, पिछले डेज़ में तो बहुत ज़्यादा डिले हो रहे थे। तो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम्स तो अप्लाई करते-करते वो आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं। तो जिस बंदे का भी पासपोर्ट नहीं है, जिस स्टूडेंट का भी पासपोर्ट नहीं है, उसको चाहिए आज ही अपना पासपोर्ट अप्लाई करे, कल ही जाके अप्लाई करे बेशक। इस टाइम इटालियन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी ओपन कर किया हुआ उन्होंने अपना एडमिशन। तो खासतौर पे सेमेस्टर 7 के जो स्टूडेंट्स हैं और जो रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उनको चाहिए कि अभी जाएँ, वो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके सर्च करें और उसको अप्लाई करें, क्योंकि ये टाइम जो है वो निकल ही जा रहा है। इसके बाद एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आइट्स से डरते हैं। आइट्स से वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। आइट्स आपको एक एज एग्जाम की बजाय, मतलब आपका जो इंग्लिश लेवल है वो नॉर्मल भी हो, मतलब 5.5 6 बैंड्स हो, तो वो इनफ है इटली के लिए। लेकिन इन केस अगर आप आइट्स को नहीं देना चाहते हैं, तो एक ये भी गुड न्यूज़ है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, अपनी यूनिवर्सिटी से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लें, व्हिच मीन्स कि इस स्टूडेंट की जो सारी डिग्री है वो इसने इंग्लिश में ली है। तो इतना सिंपल है कि आपने अपनी डिग्री इंग्लिश में ली है, तो उसके लिए आपको कोई इंग्लिश का सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास आइट्स है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि लो इंग्लिश लेवल पे एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। अगर एम्बेसी की चेकलिस्ट देखें, उसमें आइट्स लिखा हुआ है, बट वो कंपलसरी नहीं है। समटाइम ये होता है कि अगर उनको थोड़ा सा शक हो इस चीज़ में कि शायद इंग्लिश लेवल उस लेवल का नहीं होगा,
तो वो समटाइम रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन आइट्स रिकमेंडेड ज़रूर है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइट्स नहीं दिया और उनका भी एडमिशन ईजिली वहाँ पे हुआ है। तो कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लो जीपीए पे भी एडमिशन हो रहा है, लो फाइनेंशियल स्टेटस पे भी एडमिशन हो रहा है, आइट्स ना दिए बगैर एडमिशन हो रहा है, और इन सब चीज़ों के बावजूद आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें ना आपको कोई और कंट्री नहीं प्रोवाइड कर सकता, और कोई और यूनिवर्सिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती यूरोप की। और इवन आप पोलैंड को देखें, स्पेन को देखें, या फिर बुदापेस्ट को देखें, या मतलब हंगरी, या जो भी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, जर्मनी, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आपको। तो दिस इज़ द रीज़न कि स्टडी इन यूरोप का बहुत मेजर एलिमेंट स्टडी इन इटली है। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स भी कुछ आपको चाहिए। उसमें इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसलेशंस करवानी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, आपने एक टिकट उनको शो करानी है। बेसिक वो लोग डमी टिकट्स बनवा के पहले शो करवा देते हैं, जब वीज़ा आ जाता है फिर उसके बाद अपनी सही टिकट लेके और फिर वो आते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी इसके लिए आपको ज़रूरी हैं। तो आपने इन पे भी ख्याल रखना है कि अपने जो डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है ना, उसको बहुत जल्दी आपने फिल करना है, ताकि जैसे ही आप अप्लाई करें, आप वेट कर रहे हो बेसिक सिर्फ अपॉइंटमेंट का। अगर आप टाइमली ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो जो भी चैलेंजेस हैं वो सारे के सारे फुलफिल होंगे, आई एम श्योर। अब फंडिंग अपॉर्चुनिटी, जब आपने फंडिंग्स के लिए अप्लाई करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिट स्कॉलरशिप है। मेरिट स्कॉलरशिप में आपके हर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, लेकिन जैसे स्टार स्कॉलरशिप है, एलिमेंट स्कॉलरशिप है, ये मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। इनको अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना, उनका मेरिट काफ़ी हाई चला जाता है। तो जब मेरिट हाई होता है तो आमतौर पे जो लो जीपीए वाला स्टूडेंट है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, तो इधर उधर 5 स्टूडेंट्स का हाई जीपीए होना बहुत ईजी बात है जहाँ इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। तो अप्लाई ज़रूर करना है मेरिट स्कॉलरशिप पे, लेकिन जो भी हो उसके आउटकम, अगर किसका अच्छा जीपीए है डेफिनेटली उसको मिलेगा मेरिट स्कॉलरशिप भी। तो पहली ऑप्शन मेरिट स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छे स्कॉलरशिप हैं ये सारे के सारे, और इनमें आपको 6,000 यूरोस पर एनम आपको मिल रहा है, 6,000 यूरोस। और इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो मैं रिसर्च और फंडिंग्स के ऑप्शंस हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद आपका रीजनल स्कॉलरशिप है। अब रीजनल स्कॉलरशिप वो उन बच्चों के लिए है जो कि अपना मेरिट स्कॉलरशिप अचीव नहीं कर सकते। जब वो मेरिट स्कॉलरशिप अचीव नहीं करेंगे तो वो अपने रीजन पे अप्लाई कर देंगे उन तमाम डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं। जब वो रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे हैं जो उनको मेरिट से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप में मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अमाउंट है इसकी 7,000 यूरोस, मेरिट की अमाउंट है 6,000 यूरोस। जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो आपको, उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि आपको मिल वो तब रहा है जब गवर्नमेंट के पास फंडिंग है, उसमें लेट डिले होता रहता है या कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं जिसकी बेस पे लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन पहले मेरिट को प्रेफर करते हैं। मेरिट वैसे भी क्योंकि एक एक अवार्ड है जो आपको मिलता है, और रीजनल थोड़ा सा इनकम बेस्ड है, बट स्टिल इट्स गुड इनफ फॉर एवरी स्टूडेंट आई थिंक। तो 6,000 यूरोस आपको मेरिट में मिल रहा है, 7,000 यूरोस पर एनम आपको रीजनल में मिल रहा है। अच्छा, अगर एक स्टूडेंट अपने पैसे लगा के इटली आ रहा है, फॉर एग्जांपल, वो डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, अराउंड 50,000 रुपीज़ आपके लग रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में। आईबीसीसी है, मोफा है, डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजना है, इन सब चीज़ों में 50,000 लग रहा है। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस है। वीज़ा प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। एम्बेसी की फ़ी है, एम्बेसी की फ़ीस अराउंड 50,000 एम्बेसी की फ़ी होगी, 1 लाख रुपीज़ आपका लग रहा है। उसके बाद आपने, आपका एडमिशन हो जाता है, आप टिकट करवाते हैं, टिकट करवाने पे टिकट पे आपके पैसे कुछ लगेंगे, ठीक है। वन साइड टिकट मैक्सिमम 1 लाख, 1.5 लैक्स। तो अगर किसी ने बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है तो 2 लैक्स, 2.5 लैक्स इतना हो जाएगा। जब आप आ गए हैं इटली के अंदर, अब इटली के अंदर आके आपने 1-2 मंथ अपने गुजारे, और आपको, अगर आप रीजनल पे आए हैं, मेरिट है तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, रीजनल है तो थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, 2-3 माह बाद। 2-3 माह के बाद इमीडिएटली आपको 3,500 यूरोज आपको ही दे रहे हैं वो। 3,500 यूरोज से अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपका जो पिछला भी सारा खर्चा हुआ है इस चीज़ पे, डॉक्यूमेंट्स पे, आपके टिकट पे, वो भी सारा कुछ हो रहा है,
और इसके बाद आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है वो भी इनफ है। सो टेक्निकली आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहे हैं सिर्फ 2 मंथ्स में, और इटली जाकर, और इतना बड़ा ऑप्शन कि आपको मास्टर्स में एडमिशन भी मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये सब रीजंस जो है ना, इनकी बेस पे इटली को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को इस पे चांस लेना चाहिए। अभी ये सारे फायदे तो एक तरफ है, उसके बाद, और मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ, या मैं मुझे मतलब कोई इससे चीज़ कोई हासिल हो रही है, कुछ नहीं। ये रियलिटी बेस्ड बात है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता, और वो डर के अप्लाई नहीं कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद जब आपका रीजनल स्कॉलरशिप हो जाएगा, एक एरास्मस का एक्सचेंज प्रोग्राम आएगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं उस पर। एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम पे आप यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसका एमओयू आपकी उस यूनिवर्सिटी के साथ है, आप जाके वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम दे सकते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम आपका 6 मंथ्स और 1 ईयर का हो सकता है। मेरिट स्कॉलरशिप में इन्होंने लास्ट टाइम एक ये पाबंदी लगाई थी कि 6 मंथ के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन रीजनल में ऐसी पाबंदी नहीं है, 1 ईयर पे भी आप जा सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी को चूज किया, आपने एरास्मस अप्लाई किया, छोटा सा टेस्ट है, थोड़े से वो उसके क्राइटेरियाज हैं जो आप फुलफिल करेंगे। अगर आपको एरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम में आप एडमिट हो जाते हैं, आपको मिल जाता है, तो आप 1 ईयर के लिए यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात, जब आप यूरोप के किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको यूरोपीय यूनियन अराउंड 900 यूरोज टू 1000 यूरोज पर मंथ पे कर रही है, और एक्स्ट्रा फ्रॉम योर रीजनल स्कॉलरशिप। सो एट अ टाइम आप यू आर गेटिंग 2 फंडिंग्स एट अ टाइम, विच इज़ क्वाइट इनफ टू टू लिव इन यूरोप। बहुत अच्छी फंडिंग्स हैं सारी। तो आप अराउंड जो है वो 1500 1000 आपको जो है वो ईयू यूरोपीय यूनियन और रीजनल स्कॉलरशिप पर मंथ जो कि 500-600 यूरोज मिल रहा है, आप उसको आप वो दोनों फंडिंग्स एट ए टाइम ले रहे हैं। और अकोमोडेशन आपकी, आपके मील्स वो बहुत ही चीप आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज़ में रह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की बेस पे आपका अराउंड मतलब जो एक्सपेंस है, उसके बावजूद आप बहुत कुछ इंजॉय कर सकते हैं विद इन इटली, आउटसाइड इटली। शेंगन जोन है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यूरोप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक शेंगन जोन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसको ट्रैवलिंग का शौक है। जिसको ट्रैवलिंग का शौक नहीं भी है, और एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब वो जब जब भी एक स्टूडेंट बाहर आता है, तो उसके लिए दो चीज़ें को इम्पोर्टेंट बड़ी होती हैं। सबसे पहले एक कि उसका जो डिग्री है, क्या उस डिग्री को अपनी सही तरीके से लेके चल रहा है, आपके कोर्सेज पास हो रहे हैं, आपको कहीं उधर से डिप्रेशन तो नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ें आपकी फंडिंग्स, और तीसरी चीज़ आपका डिप्रेशन, जो टेक्निकल डिप्रेशन आपको होता है अपनी फैमिली से दूर रह के। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको टैकल करना, खासतौर पे अब्रॉड में। तो जब आपका फंडिंग का एलिमेंट ठीक रहता है ना, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये एलिमेंट जो होम सिकनेस का एलिमेंट है ये भी ठीक रहता है। और दूसरी बात, आप अपने घर भी जा सकते हैं कभी भी। जब आपको मतलब ये अच्छी फंडिंग्स मिल रही होंगी, तो आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। जब भी आपको छुट्टियां मिले, टाइम मिले, आप आराम से और कंट्रीज़ में जाएँ, और कंट्रीज़ में जाएँ, इसके साथ-साथ पाकिस्तान जाएँ। पाकिस्तान जाके अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुज़ारें, आपकी होम सिकनेस वाला एलिमेंट जो है वो दूर हो जाएगा। तो एरास्मस एक्सचेंज पे आप 1 ईयर जा रहे हैं, अब आप जा तो इटली रहे थे, आपने 1 सेमेस्टर इटली में गुज़ारा, उसके बाद आप 1 साल के लिए यूरोप की बहुत, इसमें यूके भी है, यूके में भी आप जा सकते हैं। तो आपने पूरा 1 साल कहीं और गुज़ारा इटली से, और आपने 1000 पर मंथ फंडिंग एक्स्ट्रा ईयू से ली। उसके बाद क्या है, आप वहाँ से वापस आए, अब आपको एक थीसिस लिखना है, जो अपने मास्टर्स का थीसिस लिखना है। उसके लिए आप फिर से दोबारा रिसर्च फंडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। अब रिसर्च फंडिंग के लिए इसको थीसिस अब्रॉड फंडिंग कहते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपने रिसर्च फंडिंग जो अप्लाई करनी है वो यूरोप में नहीं, वो पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में आ जाते हैं लोग थीसिस करने के लिए, अपनी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी घर की, उधर से आप एक्सेप्टेंस लेते हैं, और अपने दो टीचर्स का आपस में कॉन्टैक्ट करवाते हैं, उनका एमओयू साइन करवाते हैं, और आप जो है अपनी होम यूनिवर्सिटीज़, बेशक आप अगर आप यूईटी से हैं, आप यूईटी में अपने किसी भी टीचर को लेके उनका कोलैब करवा के आप वहाँ पे रिसर्च ले सकते हैं। और इसके लिए अगर आप आउटसाइड यूरोप जा रहे हैं, तो यूरोपीय यूनियन आपको 1300 यूरोज पर मंथ पे कर रहा है, और अगर आप विद इन यूरोप जा रहे हैं, तो वही रासमस एक्सचेंज वाला 1900 यूरोज, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री के उधर इन्फ्लेशन कितनी है उसकी बेस पे एक लिस्ट है जो कि आपको मिलती है। सो 1300 यूरोज पर मंथ आपको रिसर्च एंड
थीसिस की फंडिंग मिल रही है जब आपने करना है। तो अब एक स्टूडेंट जिसके पास जीपीए भी नहीं है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस भी लो है, वो अप्लाई कर रहा है, सिर्फ उसने अप्लाई करना है, और अगर उसको अप्रूव हो जाता है तो वो क्या कर रहा है, उसे 1 साल रीजनल स्कॉलरशिप और दूसरे साल भी मिलता है रीजनल स्कॉलरशिप, तीसरे साल भी मिलता है, तीसरे साल हाफ मिलता है, दूसरे साल तो कंफर्म मिलता है। उसके साथ आप एरास्मस एक्सचेंज 1 साल के लिए, थीसिस एंड रिसर्च फंडिंग 6 मंथ्स के लिए। तो 1.5 साल तो आपका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि जिसमें आपको एक्सट्रीम फंडिंग यू की तरफ से मिल रही है, और फिर आपको रीजनल साथ मिलता जा रहा है 2 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए भी मिल जाता है। तो आई थिंक ये सारी जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है ना, ये इटली ही आपको देगा और कोई कंट्री नहीं देगा। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब कुछ मिलता है, सब कुछ लेते हैं, ये सब इसके अलावा भी उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मतलब हाई फंडिंग्स मिल रही हैं, उनको अकोमोडेशन मील्स मिल रही हैं, उसके अलावा भी वो कहते हैं शायद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट करनी है, उन्होंने जॉब करनी है कहीं पे। तो फिर डेफिनेटली आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे तो नहीं जा सकते अगर आपने जॉब्स वगैरह करनी है, या फिर आप उधर जाके जॉब्स करें। लेकिन इसके अलावा फिर आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आता है, आपका फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आप फ्रीलांस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है यहाँ पे कि आप 1 मिनट में अपना लैपटॉप खोल लें, अपना अकाउंट बनाएँ या कुछ भी और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेनी पड़ती हैं। आपको अपना एक पतिता ईवन नामी डॉक्यूमेंट है वो खुलवा के, और उसके बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, और इन केस इसमें अगर आपका टैक्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो आपको अपनी फंडिंग को गिव अप करना पड़ता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है अगर कोई बंदा करना चाहता है। इसके अलावा फील्ड जॉब्स हैं, फील्ड में आपको जॉब्स मिलती हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, कि आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आपने इटालियन इटालियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक सबसे बड़ा जो है ना ड्रॉबैक इटली का ये भी है कि आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इटली में आते हैं, लेकिन इटालियन को सीखना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब हम लोगों को जो यहाँ बाकी भी स्टूडेंट्स हैं 6-7 मंथ्स में वो A2 लेवल या B1 लेवल तक भी लोग गए हैं। तो इसलिए क्योंकि वो राइटिंग में और रीडिंग में सेम एज़ इंग्लिश है, और स्पीकिंग में डिफरेंट है। तो आपने जब स्पीकिंग अपनी सही करनी है तो आपको इटालियन लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक आ जाएगी। बेसिक तो आपको एटलीस्ट आ ही जाएगी। उसके बाद और जॉब्स, अगर किसी ने और जॉब करनी है तो डेफ़िनेटली आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह पे और इस तरह भी और जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे डिलीवरीज़ करते हैं, डिलीवरीज़ से अपने एक्सपेंस पूरे करते हैं, लेकिन आमतौर पे वही लोग हैं जिनके पास स्कॉलरशिप्स नहीं है। सो आई थिंक कि बहुत जो भी स्कॉलरशिप को मिस कर रहा है वो अपने सिर्फ इस वजह से मिस कर रहा है कि वो एक्टिव नहीं था। अदरवाइज वो मतलब उन स्कॉलरशिप में एक्टिव नहीं रहते और वो फिर थ्रू आउट और जॉब्स ढूंढते हैं। मेरा ख्याल अगर कोई बंदा एक्टिव है तो इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं है, बिल्कुल भी मसला नहीं है कि वो इजीली अपना कोई ना कोई स्कॉलरशिप या कोई ना कोई फंडिंग अप्रूव करवा सकता है। इसके अलावा हमारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस जो हमें यूरोप में फेस करने पड़ रहे हैं, इटली में फेस करने पड़ रहे हैं, वो सबसे पहले तो लो वीज़ा रेशियो है। अब हमारी वीज़ा रेशियो क्यों इतनी कम है, इसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रीज़न हम इसकी खुद भी हैं। हम लोगों को क्या किया हुआ है, हमने पिछले कुछ अर्सा पहले ऐसे ही किसी ने स्कैम शुरू कर दिए, किसी लोगों ने स्टिकर्स चुरा लिए, कोई इस तरह के काम हमेशा से कोई ना कोई इशू रहा है पाकिस्तानियों का। तो इसकी बहुत बड़ी रीज़न हम खुद भी हैं। और पिछले दिनों में एक ऐसा केस आया जो कि मैं आप सबको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। किसी बंदे ने अपनी छोटी सी टेम्परिंग कर ली अपने मार्क्स के अंदर। तो जब वो टेम्परिंग की तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का आया, कि उसने सिर्फ जो है, और वो बेसिकली उसने नहीं की थी, वो उसके कंसल्टेंट ने की थी जिसके थ्रू उसने अप्लाई करवाया था। क्योंकि उसे अपने पैसे से गर्ज था, उसने क्या किया, उसके थोड़े से वो मार्क्स चेंज करके स्कॉलरशिप ले लिया, और उसके बाद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना इशू हमें फेस करना पड़ा यहाँ पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को। स्पेशली उन्होंने हाईलाइट किया, और जिसकी बेस पे उन्होंने एक कैटेगरी थी स्कॉलरशिप की जिसमें पाकिस्तानियों को एक्स्ट्रा फेवर मिलती थी, उसमें से पाकिस्तान को निकाल दिया। तो इसमें से अगर आप खुद अपने साथ सिंसियर नहीं रहेंगे तो इस तरह के इश्यूज आपके साथ होंगे। सो लो वीज़ा रेशो, अगर एक स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से अप्लाई करता है ना, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से करता है, तो मेरा नहीं ख्याल उसका वीज़ा रिजेक्ट होने लगा है। लो वीज़ा रेशो ज़रूर है, लेकिन टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करें,
और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और अप्लाई करें। बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो भी होगा बेटर होगा। अब बेसिक अपॉइंटमेंट्स के लिए भी आप देखें मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आओ आपको इतने लाख की मैं अपॉइंटमेंट ले देता हूँ, और ये सब लोग स्कैम हैं। इनके लिए कोई मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिंपल BLS के पोर्टल पे जाएं, अपनी अपॉइंटमेंट ढूंढें, टाइमली स्टार्ट करेंगे ज़रूर मिलेगी। उसके अलावा ऑन टाइम अराइवल का एक इशू होता है कि हम लोगों का वीज़ा लेट हो जाता है, डिले होने की वजह से हम ऑन टाइम अराइव नहीं कर सकते इटली के अंदर। तो जब हम ऑन टाइम अराइवल नहीं कर सकते तो कुछ कुछ केसेस में हमारे जो हैं वो एडमिशन्स भी कैंसिल हुए हैं, कुछ कुछ केस में हमारी अकोमोडेशंस कैंसिल हुई हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऑन टाइम अराइवल, बेसिकली सारी चीज़ें ना एक टाइमली प्रोसेस को स्टार्ट करने से जुड़ी हैं। अगर आप अपना प्रोसेस को टाइमली स्टार्ट करते हैं तो आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि चैलेंजेस हैं। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये भी हमेशा से आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को देखना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छी चीज़ है कि एक ब्यूटीफुल कंट्री है, जब आपको अच्छे स्कॉलरशिप, अच्छी फंडिंग मिलेगी, आप ट्रैवल करें, आप इधर जाएँ। बहुत से लोग वेनेज़िया, वेनिस जाना चाहते हैं। थोड़ा सा ओवररेटेड है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतना, लेकिन ज़रूर जो बच्चे शौक रखते हैं उसका ज़रूर जाएँ, देखें। और मतलब अच्छी प्लेसेस हैं काफ़ी, ट्रैवलिंग वाइज़ बहुत अच्छा है। नॉर्दर्न इटली बहुत अच्छा है, अगर आपको हाइकिंग वगैरह का शौक है, इन चीज़ों का शौक है तो आप नॉर्दर्न इटली जा सकते हैं। और बाकी आपने इटली की ब्यूटी तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इटली एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। इसके अलावा पूरा यूरोप ही आप ट्रैवल करें, जितना भी आप मैक्सिमम इंजॉय कर सकते हैं उसमें करें, क्योंकि आप जब घर से दूर हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप डिप्रेस ना हों, आप डिप्रेशन में ना जाएं जितना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं इस लाइफ से। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते रहेंगे या आप अच्छे इंजॉय करते रहेंगे तो मेरा ख्याल आप इस चीज़ को बड़ा ओवरकम कर सकते हैं। फिर उसके बाद इटालियन कुजीन, जो कि इटसेल्फ एक बहुत फेमस है। पास्ताज हैं, लजानिया है, पिज़्ज़ा, इटालियन चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप देखें, आप यहाँ पे जो इटालियन पिज़्ज़ा है उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ही उसकी चीज़ है। बाकी तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तानी पिज़्ज़ाज़ भी बड़े पसंद होते हैं लोगों को, लेकिन जो इटालियन चीज़ है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है सबसे ज़्यादा। जो जो कुज़ीन का डिफरेंस है मेनली वो उसकी उनकी चीज़ में है। इस तरह लज़ानिया है, पास्ता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कुज़ीन है जो आप यहाँ पे आके एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। तो ऑल ओवर आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इटली को चूज़ करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, अच्छी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी जो है आपको एक्सचेंज प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक एक स्टूडेंट को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अभी मुझे ना ईमेल आई थी कल ही, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया ने अपने ना एडमिशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी डेडलाइन ना आई थिंक उन्होंने री अनाउंस किए हैं या क्या ऐसा रीज़न है कि 15 जनवरी डेडलाइन है। तो आपके जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बच्चे हैं सिविल इंजीनियरिंग के, कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो, और इसके अलावा मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया की जो डिग्रीज़ हैं वो उन पे ट्राई करें अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी, मैं अवेलेबल हूँगा, आप अपनी सोसाइटी से बात करें उस पे, तो वो सोसाइटी वाले मेरे तक पैगाम पहुँचा देंगे, हम ग्रुप की सूरत में या किसी भी सूरत में। तो वो उस पे ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया में अप्लाई करें, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, दूसरा आपको फैसिलिटीज़ वगैरह बड़ी अच्छी प्रोवाइड करती है। तो 15 जनवरी इसकी डेडलाइन है, तो अगर आपके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपके पास पासपोर्ट वगैरह हैं, अगर नहीं भी है तो आई थिंक आप आईडी कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की जगह। तो आप उसको ज़रूर देखें जो जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर हैं, और 15 जनवरी से पहले पहले उस पर आप अप्लाई करें, ताकि आपका प्रोसेस टाइमली स्टार्ट हो और आप फिर उसमें अपने वीज़ा प्रोसेस की जाने जाएँ उसमें। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक स्लाइड जो मैंने आपको प्रेजेंट की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो इन सब चीज़ों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और इंशाल्लाह आप ज़रूर अप्लाई करें इस प्रोग्राम पे, तो आपके लिए बेस्ट होगा। और मैं वो तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो भी ये सोच रहे हैं कि अगर उनको प्रॉब्लम्स हैं, अपने घर से प्रॉब्लम्स हैं या अपने स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल साइड पे रख के
अल्लाह पे यकीन रख के इस पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ बेटर उनके लिए होगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और स्कॉलर ब्रिज सोसाइटी का बहुत शुक्रिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर सेशंस हम इसके बाद करेंगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू। Very much, sir. जी, तो अगर आपके अस्सलाम पास। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था, जैसे लाइक यूएसए में होती है हमारे पास रिसर्च असिस्टेंटशिप, रिसर्च ग्रांट्स जो होती है, फंडिंग होती है प्रोफेसर्स के पास, तो इसी तरह इटली में भी और बाकी कंट्रीज में मतलब सेम प्रोसीजर होता है या फिर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं? और इसमें हमारे पास कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम फंडिंग मिले हमें, और हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि हमारे चांसेस को इंक्रीज कर सके फॉर ग्रैबिंग एनी हैंडसम स्कॉलरशिप और किसी भी फंडिंग के लिए? ओके थैंक यू। अच्छा, जो रिसर्च फंडिंग्स है ना, जो डायरेक्टली प्रोफेसर से जैसे यूएसए वगैरह में होता है, तो ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं, लेकिन आई थिंक कि अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह की फंडिंग्स आती हैं ज़्यादा, वो अपने ना ऑनगोइंग स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आज भी को फंडिंग है ना, तो बेसिकली ये जो थीसिस अब्रॉड वाला भी है ना, फंडिंग्स इनके पास होती हैं, ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट में ही आप जाते हो किसी। तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है मास्टर्स में अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ रिसर्च असिस्टेंट और इन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे ना 90% टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैसे ही आपको फंडिंग देनी होती है रिसर्च पीरियड के लिए और इन चीज़ों के लिए। तो अगर आपने एक अच्छा स्कॉलरशिप लेना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है इटली के केस में। अगर आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, तो फंडिंग लेना इतना मुश्किल नहीं है। वो एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके मैं आपको सारे ट्रिक्स भी बता दूंगा बेशक, अगर आप हम किसी ग्रुप की सूरत में आपस में बात करेंगे ना। तो आई थिंक कि आप एक दफ़ा एडमिशन सिक्योर करें अपना, जैसी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी, फंडिंग्स को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना वो इतना इशू नहीं है। अगर आप अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ज़रूर आपको मिलेगा। तो रिसर्च असिस्टेंस पे जाने से बजाय आप अपने मास्टर्स में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंस किसी बाहर के बंदे को देना बड़ा मुश्किल है। हाँ, पीएचडी के केस में ऐसा होता है, लेकिन मास्टर्स के केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, और इसमें मतलब इटली का मेरे ख्याल से कोई डिफरेंट ही सिनेरियो होता है ये सिलेक्शन का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसमें भी जस्ट लाइक दूसरी कंट्रीज में जैसे रिसर्च प्रपोजल पे बहुत हो रहा होता है, और रासमस में तो बिल्कुल ही अपोजिट सीन होता है ना, वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कंप्लीट। तो इटली में मतलब इस तरह का क्या सिनेरियो होता है कि आपके रिसर्च प्रपोजल पे होता है, या फिर इसी तरह कोई एक स्पेसिफिक पब्लिकेशन हो गई या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, किस स्पेसिफिक पोर्शन में ये हमारी ना एप्लीकेशन को बूस्ट करता है, क्या चीज़ है वो? अच्छा, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि जब सब स्टूडेंट्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा तो ग्रेड पॉइंट एवरेज को ही देखती है। जीपीए की बेस पे उनको वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर इंटरव्यू पे कॉल करती है। लेकिन इंटरव्यू पे आप अगर कॉल होने के चांसेस काफ़ी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, अच्छे चांसेस हैं। खासतौर पे 3+ जीपीए पे अच्छे चांसेस होते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाए। उसके बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट यही देखेंगे कि आपके जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं, क्या वो आपकी मास्टर डिग्री से मिल रहे हैं, और आपका जो मोटिवेशनल लेटर भी होगा ना, उस पे भी आपने फोकस इस चीज़ पे करना है कि जो आपके पिछले कोर्सेज आपने बैचलर्स में पढ़े हैं, वो आपके मास्टर से लिंक होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो अगर आपके सारे लिंक है, तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है, वो मतलब आपको डेफिनेटली एडमिशन ग्रांट कर देंगे। क्योंकि मेरिट्स जो है ना, वो एडमिशन के मेरिट इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जैसे अब रासमस है ना, रासमस इटसेल्फ एक मतलब फंडिंग आ रही है उसमें, तो उसमें आपको बड़ी थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया है।
अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट एनरोल होना चाहते हैं तो इसमें आपको क्राइटेरियाज थोड़े कम मिलते हैं, आपकी सिलेक्शन आसान है काफ़ी। लेकिन बस आपने इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको ये ज़रूर बताना है कि आपके जो किस तरह से पिछले सब्जेक्ट्स अगले सब्जेक्ट से मिलते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है ना कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और कि वहाँ पे हमारे लिए क्या चैलेंजेस होंगे, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए होंगी या नहीं, कि किस कंट्री में अगर हम जाएं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने चाइना में भी किया है, जापान में भी किया है, मलेशिया, कनाडा, इस वक्त मैं यूएसए को देख रहा हूँ। लेकिन अब 2 से 3 प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में हूँ मैं जापान के, उन्होंने मुझे मतलब पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन वो इतनी हाई रैंक यूनिवर्सिटी नहीं है। इसी तरह चाइना की भी 4-5 प्रोफेसर के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मैंने जाना कहाँ है, मतलब किसको प्रेफर दूँ मैं। अगर यूनिवर्सिटी वाइज प्रेफर दूँ तो वो चाइना में आ रहा है, अगर मैं वो जापान में नहीं आ रहा। और इसी तरह कनाडा में अगर जाएं हम, तो वहाँ की रिसर्च ही इतनी हैवी है कि हमारे, आपको पता है, पाकिस्तान में इतनी रिसर्च करवाई नहीं जाती। हमें खुद ही मतलब कि थोड़ी सी इनपुट डालते हैं तो फिर ही थोड़ा सा रिजल्ट निकलता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए पहले साल में ही, या फिर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि आजकल जो सिनेरियो है ना और दुनिया का वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अगर आपने मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड आपके स्किल्स कर रहे हैं और आपकी वो चीज़ें कि आपने क्या उस स्किल्स को अपनी डिग्री के अंदर सीखा है या नहीं सीखा। जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ना वो सिर्फ बेस कर रही है आपके एकेडमिक्स पे, कि अगर आपने एकेडमिक करियर को आगे चूज़ करना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब देखें, अगर आप जापान में जाते हैं, जापान में आपको लैंग्वेज इशू तो है और इट्सेल्फ बहुत चैलेंजेस है। यूएसए में, कनाडा में जो स्टूडेंट है ना उसको इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको जब एज अ स्टूडेंट आप जाते हैं तो स्टार्ट में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उनको ओवरकम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। यूरोप में और इटली में आपको एक ये फ़ायदा होगा कि आपकी एज अ स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन स्टूडेंट लाइफ के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए इटालियन लैंग्वेज। कंपनीज सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पे, विद इन यूरोप आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हमें एज ए पाकिस्तानी एक ये भी हमारा गोल होता है कि हमें पीआर मिले और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो पासपोर्ट के थ्रू, पीआर के थ्रू। तो आई थिंक उसके लिए यूरोप एक अच्छा मतलब डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपको अगर पासपोर्ट यूरोप का मिलता है पूरा शेंगन जोन आपके लिए खुलता है। और इसके बाद अगर आप इटालियन डिग्री को गल्फ में लेके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे फेवर्स मिलेंगी। गल्फ में इटालियन डिग्री, यूरोपियन डिग्री इनकी बड़ी डिमांड है। नो डाउट यूएसए डिग्री की भी है, लेकिन यूएसए में एज अ स्टूडेंट आपको जाना ना वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। और वहाँ पे जो आपके सारे फंडिंग्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं फंडिंग्स लेना वहाँ पे, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर आपने ईजी पाथ पे चूज़ करना है तो आप इटली आएँ, इटली में अपनी डिग्री करें, यूरोप में अपनी डिग्री करें, यूरोप के बाद आप वहाँ की सिर्फ लैंग्वेज सीखें और उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में भी। जॉब्स नो डाउट हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, बस कुछ कहीं कहीं पे इटालियन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप जापान और चाइना कंपेयर करें ना, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब वहाँ पे तो आपको हर चीज़ के इश्यूज हैं। चाइना में जो स्कॉलरशिप्स और फंडिंग्स मिल रही हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि वो चाइना, जापान इन जगहों से तो अगर किसी को यूरोप का चॉइस मिले वो डेफिनेटली छोड़ता है। इसमें यूएस से कनाडा एक हो सकता है कि जिसका हम कंपैरिजन करें। और यूएस से कनाडा मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि एक स्टूडेंट की लाइफ वहाँ बहुत टफ है। उसके बाद फ्यूचर में जॉब वगैरह करना वो ठीक है, वो अच्छा है, मतलब ऑप्शन वहाँ वहाँ लैंग्वेज के इश्यूज नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये है, आप यूरोप में आए, अपनी डिग्री करें और यहाँ के बाद आप अपनी जॉब पे अप्लाई करें डायरेक्ट यूएसए में, कनाडा में, या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। और आप अपनी यहाँ पे भी पहले एक एज अ स्टूडेंट अच्छी लाइफ गुजारें और वहाँ पे भी आप डायरेक्ट जॉब में जाएं, बिकॉज जब आप यूरोप में आ जाते हैं ना, आपका जो वीज़ा है वो बहुत आसान है। दूसरी बात,
स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अपना जो स्टडी अब्रॉड है वो अपनी मतलब जो डेस्टिनेशन है, जो अपनी डिज़ायर डेस्टिनेशन है, उस पर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी डिग्री करूँगा, एरास्मस पे जाऊँगा, अपना स्टार्ट करूँगा इटालियन यूनिवर्सिटी से, अपना थीसिस करवाऊँगा कनाडा के अंदर। कनाडा में मुझे फंडिंग कहाँ से मिल रही है? ईयू से। रिसर्च मेरी अपनी हो रही है 6 मंथ्स, लेकिन मैं कनाडा में रह रहा हूँ। उस दौरान मैं अपनी कहीं पे भी, क्योंकि डिग्री का लास्ट है मेरा, मैं अपनी डिग्री पे कहीं पे भी जॉब सिक्योर कर सकता हूँ और उसके बाद अपनी डिग्री ख़त्म करके वहाँ मूव कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है थीसिस अब्रॉड की, जो कि इधर आपको मिलती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपने जो एक यूनिवर्सिटी बताई थी जिसकी 15 जनवरी लास्ट डेट थी, वो दोबारा नेम बता सकते हैं यूनिवर्सिटी का, स्कॉलरशिप जी का? जी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया है, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, वही यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया। यूनिवर्सिटी ऑफ रेशिया। हाँ, ब्रेशिया, ये स्टार्ट में स्लाइड्स के स्टार्ट में भी मेंशन है मेरे इंट्रोडक्शन में। ओके ओके, ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया है कि जब इंटरव्यू होता है या सिलेक्शन का टाइम होता है तो उस टाइम ना वो सब्जेक्ट मैच होना चाहिए। तो शायद मैंने ये, या तो आपकी बात गलत सुनी हो। तो इससे ही मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा अपनी फील्ड स्विच करना चाहता, जैसे अब मैं अगर बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ और मेरा आगे इरादा है एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का, तो क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहिए या नहीं? और इससे रिजेक्शन के चांसेस तो नहीं होते कि बंदा अपनी फील्ड स्विच कर रहा है? जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फील्ड को स्विच करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोर्सेज ज़रूर होने चाहिए कि आपके जो मैच करें। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक कोर्स है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स का आपको नो हो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में भी करवाई जाती है। तो इन केस अगर आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझें। कुछ डिग्रीज ऐसे ज़रूर हैं, जैसे एमबीए है, बिजनेस की डिग्री है, वो कोई भी कर सकता है। वो बैचलर्स के बाद, मास्टर्स के बाद एमबीए की डिग्री कोई भी कर सकता है। तो इन चीज़ों को वो डेफिनेटली इटालियन प्रोफेसर्स भी समझते हैं कि कोई भी कहीं, जैसे अब यूरोपियन हिस्ट्री है फॉर एग्जांपल कोर्स, तो यूरोपियन हिस्ट्री में तो कोई भी जा सकता है ना, अगर किसी का इंटरेस्ट है। तो इस वजह से इसका इतना इशू नहीं है इन डिग्रीज का। वो ऐसे है जैसे आप सिविल से सिविल में कहीं जा रहे हैं, तो वो कोर्सेज जो आगे हैं वो पीछे से मैच हो रहे हैं। वो ये मतलब उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी यूं की तो कई डिग्रीज हैं जिसमें आप मैच नहीं करता, पिछले भी पूरी फील्ड से लोग आते हैं उन डिग्रीज के अंदर। ओके, थैंक यू सर। सर, अगर आप काइंडली वो लिंक शेयर कर दें यहाँ पे चैट बॉक्स में, यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई करना है। जी जी, मैं फिर ऐसा करूँगा कि आपका जो ग्रुप है उसमें या एडमिन को भेज दूंगा, तो वो आपसे लिंक शेयर कर देगा।